Hello students, as you all know revision is going on. First chapter rational number we are discussing. So today we are going to see representation of rational numbers on the number line. Okay, here in this particular section we will learn the representation of rational numbers on the number line. Means suppose we have a rational number. So how will we represent 3 upon 5 on the number line? Okay, in earlier class, in class 7th, you studied that how to represent integers on number line. But here in class 8, you are studying rational numbers. So obviously you will learn the representation of rational numbers on the number line. So here I have divided this whole section into two cases, case first and case second. In case first, I have taken a proper rational number. It is a proper because numerator is less than denominator. You know proper and improper, okay? And in case second, I have taken 11 upon 4, which is an improper rational number because here the numerator is greater than the denominator. When the numerator is less than the denominator, then rational number is known as proper rational number. And when the numerator is greater than the denominator, then rational number is known as improper rational number. So let us see the representation of proper rational number on number line. Here we are going to represent 3 upon 4 on the number line. So let us make number line first. This is the number line. Now let us locate 0. This is 0, this is 1, this is 2, this is minus 1, this is minus 2. We have to represent 3 upon 4 on this, 3 upon 5 on this line. So first of all, we have to convert this rational number into decimal form. If you convert this into decimal form, so you'll get 0.6. If you divide 3 by 5, then you will get 0.6. 0.6 is giving us the idea of location of 3 upon 5 on this line. 0.6 means greater than 0 but less than 1. 0.6 is greater than 0 but less than 1. It means 0.6 will lie between 0 and 1. And 0.6 means 3 upon 5 because 0.6 and 3 upon 5 are the equivalent to each other. So basically 3 upon 5 will lie between 0 and 1. So it means 3 upon 5 will lie somewhere on this part of the line segment. Okay, somewhere between 0 and 1. Okay, so how we will find the actual location of 3 upon 5? We have to divide this part into as many parts as the denominator of the rational number. Means हमें ये जो part है कितने parts में divide करना है, जितना हमारे rational number का denominator है. Denominator कितना है, 5 है. तो हम यहाँ पर इसको, इस part को 5 equal parts में कर देंगे. मार्क लगाएंगे यहाँ पे. जैसे ये 1 part बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट बोल दिया हमने, ये थर्ड पार्ट बोल दिया और ये 4 पार्ट. बेसिकली ये लाइन सेगमेंट को आपको 5 इक्वल पार्ट्स में ध्यान रखिएगा, ये लेंथ ना पार्ट्स की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना. तो 5 इक्वल पार्ट्स में कर देना है क्योंकि डेनोमिनेटर 5 है. अगर 4 होता डेनोमिनेटर तो हम यहाँ पे कितने पार्ट्स में करते, 4 पार्ट्स में करते. अभी यहाँ पे डेनोमिनेटर 5 है तो 5 पार्ट्स में हमने कर दिया. अब यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है. अब आपको न्यूमरेटर चेक करना है 3. अब आपको 3 पार्ट ज्वाइन करना है, 1 2 एंड 3. 3 पार्ट जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी. 3 पार्ट्स को ज्वाइन करके ये इतनी लाइन सेगमेंट, ये इतनी लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट होगा ना, ये इस एंड पॉइंट को हम लिखेंगे 3 upon 5. मतलब 3 upon 5 की ये लोकेशन है. क्योंकि अगर आप वेरीफाई करके देखें ये 3 upon 5 है तो ये क्या होना चाहिए फिर 4 upon 5, क्योंकि यहाँ तक 4 पार्ट्स हैं. और ये कितना होना चाहिए फिर 5 upon 5, और 5 upon 5 मतलब 1, क्योंकि 5 upon 5 1 ही तो होगा ना, 5 1 सा 5. तो देखिए वेरीफाई हो रहा है ना, ये 1 ही था ना यहाँ पे, ठीक है ना. तो ये लोकेट करने का एक मेथड होता है
रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर। ठीक है, चलिए केस सेकंड में भी सेम इसी तरह से करेंगे। ये नंबर लाइन है और हमें यहाँ पे 11/4 करना है। ये 0 ले लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3। नेगेटिव आप अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 के राइट में लाई करेगा। देखिए यहाँ पे डेनोमिनेटर कितना है 4, तो यहाँ पे हम 4 पार्ट्स में करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, 4 पार्ट्स में कर देंगे, मार्क लगाएंगे यहाँ पे। देखिए 4 पार्ट्स में हो गया, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में हो गया। अब देखेंगे 11। अब हमें 11 पार्ट्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, लेकिन 11 पार्ट्स तो यहाँ तक हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तक तो 4 ही पार्ट्स हैं। इसका मतलब हमें इसको आगे भी डिवीज़न को करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में भी हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। सेम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4। अब अगर हम यहाँ तक देखें तो 8 पार्ट्स हो गए, लेकिन हमें कितने पार्ट्स चाहिए, हमें 11 पार्ट्स चाहिए, तो इसका मतलब डिवीज़न को आगे भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये देखिए 1 2 3 4 हमने आगे भी कर दिए। तो हमें 11 चाहिए, तो कहाँ तक होगा 11, 4 यहाँ तक हो जाते हैं, 4 यहाँ पर 8 9 10 11। तो ये पॉइंट आपका यहाँ तक जो हो गया वो 11 पार्ट्स को हमने कंबाइन कर दिया। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 11/4। सो दिस इज़ द वे टू लोकेट रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सेम अगर आपका रैशनल नंबर नेगेटिव है तो सेम नेगेटिव साइड में कर देंगे। अगर सपोज ये -11/4 होता तो सेम बिल्कुल 0 के लेफ्ट में करते। सिमिलरली अगर ये -3/5 होता तो इधर हम लाई करते 0 और -1 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं तो हमें पता है उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 रैशनल नंबर्स की बात करें, अगर हम 2 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, 2/3 एंड 1/6, ये हमने 2 रैशनल नंबर्स लिए। सपोज इनके बीच में हमें पता है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कीजिए या इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट है तो उनमें से कुछ भी पूछ सकता है। वो 5 पूछ सकता है बीच में, या फिर 8 पूछ सकता है, 10 या 100, कितने भी पूछ सकता है। तो आपको वो कैलकुलेट करने आने चाहिए कि उनके बीच में रैशनल नंबर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम इनको लाइक बनाएंगे। सपोज हम ये केस ले रहे हैं कि इनके बीच में सपोज हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 1/6। ठीक है ना, तो सबसे पहले इनको हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे। लाइक मतलब जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं, तो इनके डेनोमिनेटर्स को सेम हमें करना है। ठीक है ना, रैशनल नंबर की वैल्यू को बिना चेंज किए रैशनल नंबर सेम रहना चाहिए। अब जैसे देखिए उसका मेथड होता है, ये जो 6 है इससे आप इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। ये ट्रिक है लाइक रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करने की ट्रिक। और इधर जो डेनोमिनेटर है उससे इसमें कर दो। इस 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, डेनोमिनेटर्स इनके सेम हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 3 6 18 और 6 3 18। तो ये रैशनल नंबर हमारा बन जाता है 12/18 और ये हमारा रैशनल नंबर बन जाता है 3/18। लाइक हो गए ना। अब लाइक बनने के बाद हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड कैलकुलेट करने थे, 5। तो 3/18 और 12/18 के बीच में आपको कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है ना, तो 3/18। अब देखिए इनके सिर्फ आपको न्यूमरेटर्स को ऑब्जर्व करना है। न्यूमरेटर्स हैं 3 और 12, तो 3 और 12 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उनमें से हमें 5 ले लेना है। हम ले लेंगे 4/18 3। देखिए जो नंबर आप ले रहे हो ना उसका जो न्यूमरेटर होगा ये इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, इसके लाई और इसके बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है ना, तो 3 और 12 के बीच में 4 आता है। और क्या ले सकते हैं हम ले सकते हैं 5/18। ठीक है ना, और 6/18 भी ले सकते हैं, 7/18 भी ले सकते हैं और 8/18 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, 4 5 6 7 8 ये 5 नंबर्स 3 और 12 के बीच में ही लाई कर रहे हैं और डेनोमिनेटर इन सब का सेम 18 होना चाहिए। तो ऑब्वियस है 4/18 इनके बीच में लाई कर रहा है, 5/18 सभी के सभी इनके बीच में ही लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कन्वर्ट हो सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये कर सकते हैं 2 से हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी। ये कर सकते हैं 6 1 जा 6 6 3 जा 18 और ये भी कर सकते हैं 2 2 जा 4
सॉरी 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18, तो ये हमें मिल जाएगा 2/9, 5/18, 1/3, 7/18 एंड 4/9, ये हमारा आंसर।